Hello, dear students. Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to teach you a new chapter from a revised New Pathways book that is of class 8 and from Unit 3, Section 1, that is Pocahontas. Now, this chapter is based on conflict and hope. Conflict between the human races and hope for peace and prosperity. So now we'll start this chapter. Let us begin with the starter. Read the following lines from a famous speech and select the correct option to complete the sentences given below. So in the starting we'll go through the starter, and as I have read that we have to solve a question which is given here. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. Content of the character means their behavior. They will be judged by their behavior. Character हिंदी is चरित्र, content is सामग्री. तो आपके चरित्र में किस तरीके का हम्बलनेस है, उसके आधार पे आपका जजमेंट किया जाएगा. सो यू कैन सी द क्वेश्चन. द स्पीकर सजेस्ट्स दैट ही वांट्स, ऑप्शंस आर गिवन, A, B, C, D. A world free from racial prejudices. B, peace and social harmony. Education for every child. Option C. Option D, all children to be fair skinned. Second question, the speaker is talking about a racial discrimination. B, economic discrimination. C, caste discrimination. D, gender discrimination. Now I would like you all to answer it correctly in the comment section box. So let us now start with the chapter, that is Pocahontas. Now Pocahontas word means jovial, जिंदा दिल इंसान, or fun loving. Okay, so now we'll start it and we'll read more about it. Pocahontas was a brave Native American woman famous for bringing about peace between the Native Americans and English colonists who settled near their land. There are different versions of her story. This story is one way in which history remembers her. तो I'll just explain it in Hindi as well. Pocahontas जो है एक बहादुर नेटिव अमेरिकन वुमन की कहानी है और काफ़ी प्रसिद्ध वुमन है, वो काफ़ी फेमस है. अबाउट व्हाट? टू ब्रिंग पीस बिटवीन नेटिव अमेरिकन्स एंड इंग्लिश कॉलोनिस्ट. नाउ इंग्लिश कॉलोनिस्ट्स मीन्स उपनिवेश को जो द पर्सन्स हु आर डूइंग ट्रेड इन अदर्स लैंड, उसको हम लोग कॉलोनिस्ट्स बोलते हैं. तो जो वहाँ के नेटिव अमेरिकन्स थे, वहाँ के मूल निवासी थे अमेरिका के, उनके और इंग्लिश कॉलोनिस्ट्स के बीच में जो उनके ज़मीन के पास में आके बस चुके थे, सेटल हो चुके थे, उनके बीच में जो है पीस, शांति बहाल करने के लिए इनको जाना जाता है. देयर आर डिफरेंट वर्जन ऑफ हर स्टोरी. बहुत से अलग अलग कहानियाँ उनके बारे में हैं. एंड ये कहानी जो हम पढ़ने वाले हैं वह भी इतिहास में कहीं ना कहीं दर्ज है, जिसके बारे में हम जानेंगे. Pocahontas was the daughter of Powhatan, the powerful chief of Powhatan Confederacy. Pocahontas जो थी वो एक बहुत ही पावरफुल चीफ था, मुखिया था Powhatan कॉन्फेडरेसी का. कॉन्फेडरेसी का मतलब होता है like you can say states, people joining together for particular purpose. Here tribes, जो वहाँ के जनजाति होते हैं, जो मूल निवासी होते हैं, उनको हम लोग कॉन्फेडरेसी बोलते हैं. तो इस कहानी में पोकाहंटास जो है powhatan की बेटी है. पोकाहंटास जो है उसके फादर जो powhatan थे वो काफ़ी पावरफुल चीफ थे. काफ़ी उनके बारे में, उनके ट्राइब्स के बीच में जो है उनकी काफ़ी साख थी, उनका काफ़ी दबदबा था. A large group of more than 30 Algonquin
ट्राइब्स एंड 25,000 मेंबर्स। और ये जो पॉहटन कॉन्फेडरेसी जो था वो एक बहुत बड़ा समूह था। उसमें 30 एल्गोक्विन ट्राइब्स थे। 30 एल्गोक्विन इज़ लाइक इंडिजीनियस इनहेबिटेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इंडिजीनियस का मतलब स्वदेशी, जो उस देश के थे और वहाँ के इनहेबिटेंट थे, नॉर्थ अमेरिका के इनहेबिटेंट थे। तो उसमें टोटल 30 ट्राइब्स थे, 30 जनजाति मिल करके वो मतलब पॉहटन का उन्होंने निर्माण किया था। और उसमें करीब करीब 25,000 मेंबर्स भी थे, सदस्य थे। These tall and well-built people lived in low-lying coastal regions of modern-day Virginia. ये काफ़ी लंबे चौड़े कदकाठी के लोग थे। और ये जो आज का मॉडर्न वर्जीनिया इज़ अ स्टेट ऑफ अमेरिका। देयर आर 52 स्टेट्स इन अमेरिका। आई हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर इन द क्लासरूम। और आज का जो मॉडर्न वर्जीनिया है उसी के आसपास का जो कोस्टल एरिया है, लो लाइंग कोस्टल एरिया है, क्षेत्र जो है वहाँ पे इनका निवास था। दे बिल्ट wooden homes, carved canoes out of trees and used rocks and bones to make tools. The men hunted and fished and the women farmed. कहता है कि ये लोग जो वहाँ पे रहते थे उन्होंने लकड़ी से अपना घर बनाया था, काफ़ी नक्काशी और उसके ऊपर चित्र कार्व करके। कैनोज इज़ लाइक यू कैन से डोंगी होता है जो लकड़ी के पेड़ के लकड़ियों का बनता है। और उसके बाद इन्होंने पहाड़ों का यूज किया, बोन्स का यूज किया, ताकि उससे कुछ टूल्स बना सके ये, जिससे कि वो अपने काम को कर सके। वहाँ के जो मेन थे वो फ़िशिंग करते थे, उनका काम फ़िशिंग था। और वुमेन जो थी वहाँ पे फार्मिंग करती थी। फार्म मीन्स लाइक खेती बाड़ी और ये सब का काम वुमेन का था। पोकाहंटास, the favorite daughter of Chief Powhatan, did attract special notice for her beauty and liveliness. Hence the name Pocahontas, meaning playful one. Pocahontas जो थी एक बहुत ही प्रिय थी, चीफ पोहटन की बहुत ही प्रिय थी। और उसमें एक अलग तरह का अट्रैक्शन था। और उसकी ब्यूटी जो थी बिल्कुल लाइवलीनेस था, काफ़ी सजीव था। इसीलिए उसका नाम जो है पोकाहंटास रखा गया, जिसका मतलब होता है प्लेफुल वन, जिंदा दिल इंसान जो हर वक्त लाइक प्लेफुल मोड में रहता हो। ऑन May 1607, the 12-year-old Pocahontas sat on a hill admiring the landscape lined with all trees, lush meadows and colorful flowers. As she gazed at the horizon, the azure sky and the deep blue sea, she saw a huge ship with white sails. Excitedly, she ran to her father and brother with the news. Now एक घटना के बारे में इसमें बताया जा रहा है। 4 May 1607, दिस इज़ द टाइम। उस समय पे चूँकि पोकाहंटास का उम्र यहाँ पे बताया गया, वो 12 वर्ष की थी, 12 ईयर्स की थी। और वो हिल पे बैठ के, पहाड़ी पे बैठ के, ऊंचाई पे बैठ के वहाँ की खूबसूरती को, वहाँ का जो लैंडस्केप था, ढलाव जो था, और उस ढलाव पे जो लंबे लंबे पेड़ थे, और जो लश मिडोज़ मतलब लश मीन्स फुल, दैट इन हिंदी हम उसको रस भरी बोलते हैं। मिडोज़ इज़ द लाइक लैंड वेयर लो ग्रासेस आर ग्रॉन, जो घास भरे मैदान होते हैं उसको हम मिडोज़ बोलते हैं। और काफ़ी कलरफुल फ्लावर्स भी था वहाँ पे आसपास में। सो इट वाज गिविंग अ लाइक वेरी ब्यूटीफुल सीनरी बहुत अच्छा था। वो बैठ कर के वहाँ पे उसको एंजॉय कर रही थी। और जैसे ही उसने होराइज़न की तरफ, आसमान की तरफ, क्षितिज की तरफ देखी, होराइज़न मीन्स क्षितिज, तो उसको जो है अज्यूर इज़ ब्लू कलर, नीला कलर होता है, आसमान का जो नीला कलर होता है। और उसके साथ में होराइज़न, यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर एज वेल, आप पिक्चर में देख सकते हैं कैसा सीन जो है यहाँ पे है, राइट। तो ये सीन जो है उसकी आंखों के सामने चल रहा था। अचानक से उसको सी में जो है यू कैन सी है शिप दिखता है, वाइट कलर का शिप है, उस पर झंडे लगे हुए हैं।
और उस शिप को देखने के बाद वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और वो चिल्लाते हुए अपने भाई और ब्रदर को ये न्यूज़ देती है, समाचार देती है. चीफ पॉहटन listened to the news but was not happy. He said, "The white man coming is bad news. There is no peace with the white man here." Now इतना सुनने के बाद जो है चीफ पॉहटन जो है वो न्यूज़ सुनने के बाद दुखी हो जाता है, खुश नहीं होता है. बट उसकी बेटी जो है काफ़ी खुशी व्यक्त कर रही है. वह बोलता है कि जो गोरे लोग हैं वो आ रहे हैं और ये हमारे लिए काफ़ी बुरी खबर है, क्योंकि उनके आने के बाद जो है देयर इज़ नो पीस विद द वाइट मैन हियर. यहाँ पे अगर वो आ जाएंगे तो हमारे बीच जो है शांति नहीं रहेगी. नाउ Nantaquis, Pocahontas' 18-year-old brother was a sturdy warrior. He echoed his father's views. In the past, the white people killed many of our people to take our land. They are dangerous. अब जो है Nantaquis उसका भाई का नाम है, जो पोकाहंटास का भाई है. 18 ईयर ओल्ड है, 6 साल उससे बड़ा है और वो काफ़ी तगड़ा वॉरियर है, एक लड़ाका है. ही हैज़ फाउट सम वॉर्स ऑल्सो. और वो अपने पिता के सुर में, अपने फादर के सुर में सुर मिलाता है और बोलता है कि पास्ट में भी, पीछे में भी, भविष्य में भी जो है भूतकाल में भी जो पीछे की घटनाएं हैं उसको याद करते हुए बोलता है कि गोरे लोगों ने हमारे लोगों को मारा है और हमारी ज़मीन को हड़प लिया है. वो लोग काफ़ी ख़तरनाक होते हैं. Nantaquis and Pocahontas paddled down to the way in a canoe to find out more. On the ship, they saw a tall man with red hair and white skin. He was dressed differently too. अब जो है दोनों भाई बहन Nantaquis and Pocahontas एक कैनोए में बैठ कर के उसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आगे निकलते हैं. शिप के आसपास जा कर के जानकारी लेना चाहते हैं. तो वहाँ पे पहुँचने के बाद वो क्या देखते हैं कि उस शिप में जो है एक बहुत लंबा सा इंसान जिसके हेयर जो है रेड है और स्किन वाइट है, गोरा इंसान है. वो उसने कपड़े भी थोड़ा दूसरे तरीके का, दूसरे ढंग का पहन रखा है जो इनके कपड़ों से मैच नहीं करता. वो शिप पे है. Nantaquis turned back and informed his father. Powhatan consulted his advisors and medicine men. They concluded that the white men brought with them problems. They had magical powers. They had magical powers and thunder sticks with which they could kill anyone with ease. They were there to take away their land, their lakes, their rivers and their forest. Nantaquis और पोकाहंटास जो है वापस आते हैं वहाँ से और आप अपने फादर को इन्फॉर्म करते हैं कि क्या है वहाँ का सीन. पॉहटन जो है फिर अपने एडवाइजर्स को जो है कंसल्ट करते हैं और मेडिसिन मैन जो दवाइयाँ उपचार करने के लिए वहाँ पे होता है उनसे कंसल्ट करते हैं. और उसके बाद उनका कंक्लूज़न निकल के आता है कि ये जो गोरे लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो अपने साथ में प्रॉब्लम्स को लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास में जो है मैजिकल पावर है, जादुई शक्तियाँ होती हैं. उनके पास थंडर स्टिक होता है जिससे कि वो किसी को भी बहुत आसानी से किल कर सकते हैं, मार सकते हैं. They were there to take away their land. They just came here not to settle down, just to take their all the lands which they have. They will also take their lakes. वो उनका जो तालाब है उसको भी ले लेंगे. Their rivers and their forest. Even they will take their rivers and forest also. They will not leave anything in their hand. Now the white man was Captain John Smith. His crew was happy to be in Chesapeake Bay. They wanted to establish a small settlement there. There they hoped to find gold and silver in the New World. They also hoped to find a shorter river route to the Pacific Ocean in order to trade more easily with the countries of Asia. This site chosen for the Jamestown colony was on a peninsula in the James River. Today this peninsula has become an island. Now in this para the narrator says कि जो गोरा इंसान था उसका नाम था कैप्टन जॉन स्मिथ. एंड उसका जो क्रू था उसमें सदस्य जो थे उस शिप पे काफ़ी खुश थे, क्योंकि वो
चेस्पिक वे में पहुंच चुके थे। चेस्पिक वे इज़ एन एरिया इन द यूएस स्टेट ऑफ मैरीलैंड एंड वर्जीनिया। मैरीलैंड अगेन अ स्टेट, एक राज्य है, और मैरीलैंड और वर्जीनिया के बीच का जो एक एरिया छोटा सा है, उसको हम लोग चेस्पिक वे बोलते हैं। और they wanted to establish a small settlement there. Settlement is like they wanted to do business there. वहाँ पे वो business करना चाहते थे, business को establish करना चाहते थे. And they thought that they will find the gold and silver there because that is the new world. They were just exploring the things to find a new business with the help of gold and silver. And they have also planned, they have also hoped that they will find a shorter route to reach Pacific Ocean. And actually their plan was more not to stay there in that land where this Pocahontas and Powhatan was living, but to move to other country easily, like the countries of Asian continent. And this site was chosen for the जेम्सटाउन कॉलोनी. एक्चुअली इस जगह का जो है चुनाव इसलिए किया गया था क्योंकि वहाँ पे जेम्सटाउन कॉलोनी को बसाना था. देयर पर्पस वाज टू फिक्स पीपल देयर, वहाँ पे लोगों को बसाना और फिर आगे बढ़ जाना, फिर वहाँ पे दूसरी जगह पे जाना, वहाँ पे कॉलोनी बसाना, वहाँ पे अपने लोगों को बिठाना, और इस तरीके से दे वर ऑक्युपाइंग द लैंड ऑफ पीपल. और यही चीज़ पॉहटन और पोकाहंटास के दिमाग में भी था कि ये लोग आते हैं, ज़मीन वहाँ पे बिज़नेस शुरू करते हैं और उसके बाद वहाँ का ज़मीन हड़प लेते हैं. सो नाउ ये पहले एक पेनिनसुला था, प्रायद्वीप था, जो काफ़ी जिस पे लोग नहीं रहते हैं, और इन द जेम्स रिवर, ये जेम्स रिवर में था पहले. बट आज के टाइम पे जो है पेनिनसुला जो है आइसलैंड बन गया है, जहाँ पे लोग रहते हैं, द्वीप है बोलते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं. यहाँ पे बिज़नेस किया जा सकता है और पैसे कमाया जा सकता है. द सेटलर्स चोज दिस साइट एंड बिल्ड सम हट्स, अ स्टोर हाउस एंड अ चर्च. दे चोज दिस साइट फॉर देयर सेटलमेंट फॉर सेवरल रीजन्स. अब जो ये सेटलर्स थे, सेटलर्स का मतलब जो बिज़नेस करने आए थे लोग, उन्होंने एक जगह का चुनाव किया, वहाँ पे हट्स बनाई, झोपड़ियाँ बनाई, स्टोर हाउस बनाया जहाँ पे सामान को स्टोर किया जा सके, और एक चर्च बनाया. देन आफ्टर दे चोज दिस साइट, और इसका रीज़न बताते क्यों इन्होंने इस जगह को चूज किया था, और उसके पीछे सेवरल रीजन्स थे. इट वॉज क्लोज टू द डीप वाटर एंड ऑफर्ड ईजी एक्सेस टू सप्लाई शिप्स. ये नदी के किनारे था जहाँ से आने जाने में काफ़ी आसानी होता था, शिप को एक्सेस मिलता था. नो वन लिव्ड ऑन इट एंड इट शिप मेड इट इजी टू डिफेंड. वहाँ पे कोई रहता नहीं था, और इसका जो आकार था, जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जो था, वो किसी शत्रु से, ऑफेंडर से डिफेंड करने में, बचाव करने में काफ़ी आसान होता था. However, the confident colonists soon came to regret their choice. The land was marshy and the water they drank from the river was muddy and salty. हालांकि उनका जो आत्मविश्वास या जो कॉन्फिडेंट था कॉलोनिस्ट का, वो जल्द ही पछतावे के रूप में सामने आया, क्योंकि जिस जगह का उन्होंने चुनाव किया था वो काफ़ी दलदली भूमि थी, दलदली जगह थी, वहाँ पे रह नहीं सकते थे. और जो पानी उन्होंने पिया वो काफ़ी लाइक मडी और सॉल्टी था, उसमें मिट्टी मिला हुआ था और नमकीन खारा था. These first settlers had a little practical experience with farming, food storage and organized labor. Most of them were tradesmen, not workers, ignorant of what was required to survive in a difficult new environment. The group failed to put by adequate stores of food. जो ये पहले सेटलर्स थे, इनको पहले से पहले भी दूसरे जगहों पे इन्होंने इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस किया था, तो इनको फार्मिंग का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, फूड स्टोरेज का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, लेबर्स से कैसे काम लिया जाता है इसका अच्छा एक्सपीरियंस था. लेकिन उनके पास, क्योंकि सारे लोग जो है बिजनेसमैन थे, ट्रेड्समैन थे, लेकिन इनमें से कोई भी वर्कर नहीं था, कामगार नहीं था. ये दूसरे से काम लेना जानते थे, खुद काम करना नहीं जानते थे. एंड इट सेज कि
इस बात से वो अनजान थे, अनभिज्ञ थे कि एक नए जगह पे जाने के बाद, एक नए वातावरण में, न्यू इन्वायरमेंट पे जाने के बाद वहाँ सेटल करना कितना दिक्कत का काम होता है। उससे ये अनभिज्ञ थे, अनजान थे, और उसकी वजह से द ग्रुप, जो लोगों का ग्रुप था, वो वहाँ पे अच्छी मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में, एडिक्वेट मीन्स पर्याप्त मात्रा में फूड का स्टोरेज करने में नाकाम साबित हुए। सो डियर स्टूडेंट, वी विल नाउ कंटिन्यू this story. We have finished till here, and we will continue this story in next part of the video, and we will try to understand this story completely after reading all the parts. I hope this chapter will go in 3 parts, so you stay tuned with the channel for all other parts of this same story, so that it will be helpful for you for understanding, even for solving your exercise question answer of this story as well. Now dear student, we will meet in next video. Till then, bye, take care, and have a nice day. Thank you everyone.